السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا اس گھر سے تعلق ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا آج کیوں اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے، یا میرا وہم ہے؟ بابا مجھے ہمیشہ منحوس کہتے تھے، پتہ نہیں میں اس گھر میں پیدا ہو کر کون سا گناہ کیا۔ بھائی بھی اب مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ایک ماں تھی جو اسے پیار کرتی تھی۔ دعا یہ سب سوچتے سوچتے ایک ساتھ آہ بھری اور اپنے اللہ سے سوال کرنے لگی، اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میں آپ کی بندی نہیں ہوں؟ اللہ، تو سب کی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی اور گنہگاروں کی بھی۔ صدا میری بھی یہی سن لے مولا۔ اللہ دیکھ، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا میں نے۔ میری بھی سن مولا۔ اللہ دیکھ، کبھی کسی کا دل دکھایا نہیں میں نے، پھر میرا دل کیوں دکھایا جاتا ہے؟ وہ رو رو کر سسکیاں لے کر خدا سے مخاطب تھی، سوال پہ سوال کر رہی تھی اور بے شمار سوچوں میں گم تھی۔ پہلی سوچ پر پہنچ گئی، اللہ، اگر کبھی اس گھر میں میرے لیے جگہ ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہاں جاؤں گی میں؟ تو یہ سوچتی ہوئی بھی کانپ رہی ہوں، یہ سب سہ کیسے پاؤں گی؟ اللہ، اگر ایسا وقت آئے تو مجھے حوصلہ دینا، مجھے آسرا دینا۔ یہ کہتے کہتے تکیے پر سر رکھ دیا اور اب دعا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ پورا کمرہ اس کی ہچکیوں سے گونج رہا تھا۔ اتنے میں آواز آئی، دعا بیٹا، دیکھو دروازے پر کون آیا ہے۔ دعا نے جلدی سے آنسو صاف کرتی ہوئے ہچکتاتی ہوئی آواز سے جواب دیا، جی اماں، آتی ہوں۔ دعا کمرے سے باہر آئی تو اماں کو کام میں مصروف دیکھا۔ ابا ہمیشہ کی طرح چارپائی پر سوئے پڑے تھے۔ دعا نے خاموشی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ کون تھا جس کی طرف دیکھ کے دعا غصے میں آ گئی مگر کچھ بول نہ پائی۔ اتنے میں آواز آئی، دعا بیٹا کون ہے؟ اماں شکورہ خالہ ہیں، دعا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ شکورہ خالہ آئیں اندر۔ دعا شکورہ خالہ کو اپنی ماں کے پاس بٹھا کر خود کچن کی طرف چل پڑی۔ دعا بیٹا، اپنی خالہ کے لیے چائے بنا کر لاؤ، ساتھ بسکٹ بھی، شکورہ خالہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دعا منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن میں پہنچی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اتنے میں آواز آئی، دعا بیٹا لے آؤ۔ دعا نے چونکتے ہوئے جواب دیا، جی اماں۔ دعا نے چائے لا کر شکورہ خالہ کو دے دی۔ شکورہ خالہ دعا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پہ جوڑے اللہ اور زمین پہ شکورہ خالہ ملاتی تھی مگر ابھی تک دعا کے معاملے میں ناکام رہی۔ دعا چائے دینے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتی ہی اسے بے شمار سوچوں نے گھیر لیا۔ وہ شیشے کے آگے بیٹھ گئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر سے باتیں کرنے لگی، اے اللہ، اگر بنایا تھا تو خوبصورت بھی بناتا۔ سب مجھ میں خوبصورت ڈھونڈتے ہیں اور جب ان کو خوبصورتی نہیں ملتی تو چپ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، کیا میرے لیے کوئی نہیں بنا جو خوبصورتی سے نہیں بلکہ مجھ سے شادی کرے؟ مگر یہ بھی کہاں ممکن ہے، لوگ تو خوبصورتی کے پجاری ہیں۔ دعا جو اللہ سے ہی ہر سوال جواب کرتی رہتی، دعا بیٹا، دعا کی اماں نے آواز دی اور کمرے میں آ گئی۔ جی اماں، بیٹا شکورہ آج ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ لڑکے کا اپنا بزنس ہے مگر عمر کچھ زیادہ ہے، بس 45 سال کا ہے۔ 2 بیویاں پہلے ہیں، تمہیں الگ سے گھر لے کر دے گا۔ یہ دیکھو تصویر، بیٹی خدا کے لیے مان جا، اس بار بھی اگر تو نے انکار کر دیا تو تیرا باپ تجھے اور مجھے جان سے مار دے گا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو ہمارے سر سے بھی بوجھ اتر جائے۔ تصویر دیکھ کر دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، یہ تو ابا کی عمر کا ہے اور آپ… کچھ کہتے کہتے دعا رک گئی اور شادی سے ایک بار پھر انکار کر دیا اور دعا کی اماں کمرے سے چلی گئی اور دعا دوبارہ اپنے کمرے میں لگے شیشے کے آگے بیٹھ گئی۔ بھائی اور بھابھی بھی آنے والے ہوں گے، پھر بھابھی کی جلی کاٹی باتیں سننی پڑیں گی۔ اے اللہ، کرم کر۔ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایوس بھرے انداز میں دعا نے کہا۔ دعا کا ایک بھائی اور بھابھی بھی ہیں۔ بھائی جاب کرتا اور بھابھی زیادہ تر میکے رہتی کیونکہ سسرال والوں سے کم ہی بنتی ہے۔ زیادہ تر دعا سے بھابھی کو مسئلہ ہوتا۔ اگر دعا کی بھابھی دعا سے بہنوں والا سلوک کرتی تو دعا آج کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوتی، اور دعا کا بھائی جو صرف اپنی بیوی کی ہی سنتا ہے، ایسے حالات میں ایسے انسان سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ دعا جو گہری سوچوں میں گم اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں اس کے بھائی بھابھی بھی آ چکے تھے۔ دعا کو کوئی خبر نہیں تھی۔ دعا کدھر ہے اماں؟ دعا کو ایک ہلکی سی آواز اپنے بھائی کی سنائی دی اور وہ فوراً اٹھی اور سہمے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کیسی ہو دعا؟ بھائی اور بھابھی نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہلکی سی خوف سے بھری ہوئی آواز میں دعا نے کہا۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا تھا۔ دعا بھابھی بھائی کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی۔ ان کو جلدی تھی، کب دعا کی شادی ہو، کب ہمارے سر سے عذاب ٹلے۔ یہ الفاظ اس بھابھی کے تھے۔ افسوس، ایک عورت دوسری عورت کو عذاب کہہ رہی ہے۔ بھابھی اپنی نند کو عذاب کہہ رہی ہے جبکہ وہ خود بھی کسی کی بیٹی اور بہن ہے۔ بہو اور بیٹے کے آگے دعا کی اماں ابا بھی نہیں بول سکتے تھے۔ ابا تو ویسے بھی دعا کو منحوس سمجھتے تھے۔ دعا اور اس کی ماں گھر کا کام کرتے
और फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए बातें सुनते। दुआ अपने कमरे में बैठी फिर सोचों में गुम थी। दुआ की अम्मा इसके पास आई और दुआ को गले से लगा लिया और रोने लगी। दुआ की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। अम्मा, ये जिंदगी ऐसी क्यों है? मुझे ये रोज क्यों तोड़ देती है? मैं रोज अपने दामन की किच्चियां समेटती हूँ, ये फिर तोड़ती है। दोनों माँ बेटी बैठी रो रही थी कि अचानक घर का दरवाजा खुला और दुआ का बाप, जो नशे में था, धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ और दुआ को गालियां देने लगा। इस कमीनी ने फिर इनकार कर दिया है। कहाँ है दुआ? मैं इसकी जान ले लूंगा। इतनी देर में शकूरा माई भी घर में दाखिल हुई और कहा कि समझाओ अपनी बेटी को, शादी के लिए हाँ कर दे। अगर तुम्हारी बेटी ना मानी तो तुम्हें जो लड़के वालों ने 50,000 रुपए दिए हैं वो वापस करना होंगे। दुआ की माँ ने सुना तो इसने जल्दी से कमरे की कुंडी लगा दी। वो जानती थी कि अगर दुआ का बाप कमरे में आ गया तो इसकी पिटाई होगी, साथ में दुआ को वो नहीं छोड़ेगा। शकूरा माई जब जाने लगी तो दुआ के बाप इलियास ने कहा, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। तुम लड़के वालों से कहो कि वो तैयारी करें। वो तो चली गई, मगर दुआ का बाप सहन में खड़ा चिल्लाता रहा, मैं आज इसका गला दबा दूंगा। ये मनहूस है, दरवाजा खोलो, मैं इसकी जान ले लूंगा। आज मैं जबान दे चुका हूँ। काफी देर तक चिल्लाता रहा, मगर दुआ की माँ ने दरवाजा ना खोला। आखिर वो ये कहकर बाहर चला गया, इसे समझाओ, ये ना मानी तो मैं इसको जिंदा दफन कर दूंगा। दुआ की माँ सब कुछ समझ चुकी थी कि इलियास नशे के लिए पैसा ना होने की वजह से बेटी का सौदा कर चुका है। पहले तो वो चुप था कि दुआ इस रिश्ते के लिए मान जाएगी, मगर जब दुआ ने इनकार किया तो वो जबरदस्ती पर उतर आया था। कुछ देर खामोश होने के बाद जब दुआ की अम्मा ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। दुआ का भाई काम पर था और बहू अपने कमरे में। दुआ रोते हुई अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं मर तो जाऊंगी मगर इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। दुआ की माँ ने एक बार फिर इसकी मिन्नत की कि बेटी मान जाओ, वरना तुम्हारा बाप तुम्हें और मुझे मार देगा। मगर दुआ ना मानी और माँ के कदमों में बैठ गई। दुआ की माँ कुछ देर चुप रही और फिर अचानक दुआ से कहने लगी, आओ मेरे साथ आओ, एक ऐसी जगह चलते हैं जो सबका सहारा है। दुआ हैरत भरे लहजे में अपनी माँ के मुंह की तरफ देख के कहती है, मगर माँ किधर? आओ तुम और अपना जो कुछ जरूरी सामान है ले लो। दुआ रोते हुए बोली, अम्मा, अगर इस घर में जो कभी मेरा था सिर्फ तब तक जब मैं छोटी थी, अब इस घर में मेरे लिए जगह नहीं तो चीजें क्या मुआयने रखते हैं? नहीं अम्मा, मेरी कोई चीज जरूरी नहीं, मेरे इस घर में कुछ भी नहीं है। दुआ की अम्मा दुआ को लेकर घर से निकली। एक ऑटो किया, आटे वालों को एड्रेस बताया कि इधर ले जाओ। दुआ एड्रेस सुनकर कांप गई, मगर कुछ बोलने की सकत न रही। कुछ ही देर बाद ऑटो एक बहुत बड़े गेट के पास आकर रुक गया। दुआ की अम्मा ने ऑटो वाले को कुछ देर रुकने को बोला और ऑटो से नीचे उतर गई। दुआ ये देखकर हैरान हुई क्योंकि गेट के ऊपर बहुत बड़ा सा लिखा था, ईदी होम। दुआ हल्की सी मुस्कुराई और अपनी अम्मा को कहा, अब आप जाएं, मैं समझ गई। आप अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र न करना, मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। दुआ की अम्मा ने रोती हुई कहा, बेटी, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। और वो इस वक्त ऑटो में दोबारा बैठ गईं और इससे चलने को कहा। दुआ ऑटो को दूर दूर तक देखती रही और देखते ही देखते ऑटो नजरों से ओझल हो गया। दुआ गेट से अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही दुआ गेट से अंदर दाखिल हुई, सामने एक बाबा जी व्हील चेयर पर बैठे थे। एक लड़का इसके पाँव में बैठा था और इन बाबा जी के हाथ चूम रहा था। दुआ दिल में सवाल करने लगी कि कौन है ये बुजुर्ग जो ये लड़का इतने अकीदत और एहतराम से हाथ चूम रहा है। सोचते सोचते आगे बढ़ी। बहुत लोग हैं यहाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब पता नहीं इनकी क्या मजबूरी रही होगी। शायद इनके लिए भी इनके घर में जगह कम पड़ गई होगी या किसी के घर ही ना होंगे। ऐ दो जहां के मालिक, ये कैसी दुनिया है तेरी? बंदे एक दूसरे को खा जाने को हैं। दुआ खुद से कभी अल्लाह से सवाल जवाब करे जा रही थी और फिर इसकी नजर एक चूल्हे पर पड़ी जो छोटे से बच्चों को झुलाने के लिए होता है। दुआ इसके पास गई। ऊपर लिखा हुआ था। पढ़ने लगी, बच्चों को कत्ल न करें, इस चूल्हे में डाल दें। इसके बारे में तो मैंने सुना हुआ था, आज देख लिया। दुआ ने कहा और वहीं पर बैठ गई और सोचने लगी, एक मैं ही नहीं, इधर तो बहुत से लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, या फिर घर वालों ने तंग आकर इधर भेज दिया। एक बार फिर इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और फिर सोचों में गुम खुदा से बातें करने लगी कि अल्लाह, जो घर मेरे अम्मा अब्बा कहते थे कि तेरा है, आज इस घर में इतनी जगह नहीं कि मैं वहां रह सकूं। अम्मा का भी क्या कसूर था, वो भी बेचारी मजबूर थी। वो यही सोच रही थी कि एक शख्स आया, सामने ऑफिस में बैठे एक बुजुर्ग की तरफ इशारा किया कि वो आपको बुला रहे हैं। दुआ वहां गई। वो बुजुर्ग जो इस इदारे को चला रहे थे, दुआ से आने की वजह पूछी। दुआ की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कुछ कागजात पर दुआ के साइन करवाए और इसे कमरे रहने के लिए दे दिया। वहाँ लेडीज स्टाफ भी मौजूद था। अब दुआ को 3 टाइम का खाना और जरूरत की हर चीज इस स्टाफ के जरिए मिल जाती।
वो अकेली बैठकर अक्सर रोती और सोचती, पता नहीं अब्बा ने अम्मा के साथ क्या किया होगा। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। दुआ इधर सबके साथ एक फैमिली की तरह रहने लगी। एक दिन फिर उसने उसी लड़के को देखा जो फिर उसी बुजुर्ग के पास बैठा था, और दुआ जो थोड़ी ही दूर बैठी थी इस लड़के के जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही लड़का गया वो फौरन इस बुजुर्ग के पास आई और एहतराम के साथ इनका हाल पूछा। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी एक सवाल पूछूं? जी बेटा पूछो। बाबा जी आप इधर क्यों आए? क्या आपका अपना घर नहीं? और वो लड़का कौन है जो रोज आपके पास आता है? दुआ ने सवाल पे सवाल कर दिए। बाबा जी दुआ के सवालों पर मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा पहले तुम अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम दुआ है। बेटा बहुत प्यारा नाम है आपका, और आप इस ईदी होम में कैसे आई हो? बाबा जी मैं ही नहीं, देखिए और कितनी बहनें, बूढ़े बच्चे, एक इनमें मैं भी शामिल हो गई। लेकिन बेटा मेरा फिर भी वही सवाल है। दुआ नम आंखों से बताने लगी, बाबा जी मैं अपने घर में सबकी बहुत लाडली थी, मगर तब तक जब मैं बहुत छोटी थी। मगर अब बड़ी होने के साथ साथ रिश्ते भी खो से गए थे। हम 2 बहन भाई हैं, भाई की शादी हो चुकी है, अब्बा बाहर नशा करते हैं, सारा दिन नशेइयों के साथ बैठकर जुआ खेलते हैं, और अम्मा सारा दिन कोई ना कोई काम करती हैं। भाभी बस अम्मा पे और मुझ पर हुक्म चलाती हैं। भाई इनको कुछ कहने के बजाय हमें ही डांट देता है। वो भाई जो जब मैं छोटी थी मेरे मुंह में रोटी का निवाला डालता था, अब कभी पूछता भी नहीं। नौकरों की तरह सलूक करता है घर में, बल्कि नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता होगा। अब अम्मा पता नहीं कैसे होगी, इनके साथ कैसा सलूक होता होगा, और अब्बा ने तो बहुत मारा होगा इन्हें। वो ये बात कहकर रोने लगी और रोती हुई बोली, अम्मा मेरी वजह से छुप छुप कर रोती रहती। अब्बा हर वक्त मुझे मनहूस कहता था और अम्मा को बात बात पर मारता था। जब मैं जवान हुई तो अब्बा मेरा सौदा करना चाहता था, हमें इस बात का इल्म नहीं था। वो एक रिश्ते करवाने वाली औरत के साथ मिलकर किसी अमीर बुड्ढे से पैसे लेकर मुझे बेचना चाहता था। इससे नशा और जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए थे। इसने मुझे एक बुड्ढे से 50,000 रुपए लेकर बेच दिया और कहा कि मैं इससे शादी कर लूं, मगर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बा इस दिन बहुत गुस्से में थे और कहा, आज रात मैं इस मनहूस को मार दूंगा। अम्मा डर के मारे मुझे इधर छोड़ गईं। पता नहीं अम्मा अब किस हाल में होगी। वो भाई जो बचपन में मेरी आंखों में आंसू देख लेता तो खुद रोने लगता, आज इसको आंसू दिखाई नहीं देते। दुआ ये बताकर रोने लगी। बाबा जी की आंखें भी नम हो गई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा अल्लाह हर चीज पर कादिर है, गम न करो, वो दुआएं सुनता है। वो जो करता है इसमें इंसान की कोई ना कोई बेहतरी होती है। तुम इधर आई इसमें भी कोई बेहतरी होगी, और अल्लाह तो हमारी शाहरक से भी ज्यादा करीब है। बाबा जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपका कोई नहीं अपना? दुआ ने फिर पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अपने तो हैं, मगर इनके पास इस बूढ़े बाबे के लिए जगह नहीं थी। मतलब मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया था, और जिसका तुमने पूछा वो मेरा पोता है। जब मैं यहाँ आया तब वो बहुत छोटा था, अब वो जवान हो गया है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझे 2 दिन तक ले जाएगा इधर से। इसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है और घर भी मिला है। रोज आता है मेरे पास मुझे मनाने को कि मैं इसके साथ जाऊं। अब हाँ कर दी है, शायद यही अल्लाह की मर्जी है। अब वो शादी करना चाहता है, वो भी किसी बेसहारा लड़की से। बहुत ही अच्छा बच्चा है बेटा। दुआ इंसान की जिंदगी बुरी नहीं होती, इसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। एक बात कहूँ, मानोगी? जी बाबा बोले, मेरे पोते से शादी करोगी? दुआ ये सुनकर बाबा की तरफ हैरानगी से देखने लगी और बोली, मैं कैसे शादी करूं? दुआ हिचकिचाते हुए अंदाज में बोली, हाँ बेटा तुम बताओ, मैं इधर से चला जाऊंगा, मगर तुमको भी अपनी बेटी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। नहीं बाबा, आपका पोता तो बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर भी, और मैं अक्सर माँ से कहती थी कि मुझे अमीर ज़ादों से नफरत है। पता है क्यों? क्योंकि इनको हर चीज दौलत में तोलने की आदत होती है। बाबा जी दुआ की बात सुनकर हंस पड़े और दुआ सवालिया नजरों से बाबा की तरफ देख रही थी। दुआ बेटा, मेरा पोता जितना बाहर से खूबसूरत है इससे कहीं ज्यादा अंदर से। तुम बताओ मेरी बेटी बनोगी? दुआ ने इस लड़के को कई बार देखा था और दुआ को वो अच्छा भी लगता था। ठीक है बाबा, एक शर्त पर, आप जबरदस्ती नहीं करोगे अपने पोते के साथ। इनका जवाब अगर हाँ हुआ तो मैं तब ही मानूंगी। दुआ ने जवाब दे दिया। दुआ बिल्कुल ठीक है। कुछ ही देर बाद बाबा का पोता जिसका नाम सहरोज था बाबा के पास आया। दुआ छोटे बच्चों को खाना खिलाने में मसरूफ थी। बाबा ने कहा, शहरोज बेटा आज एक बात करने लगा हूँ, मानोगे? दादाजी हुक्म करें। शहरोज ने अपने दादा के पांव दबाते हुए बोला, वो लड़की देख रहे हो जो बच्चों को खाना खिला रही है? बाबा ने दुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादाजी वो कौन है? शहरोज दुआ की तरफ देखते हुए बोला। बाबा ने दुआ के बारे में सब बता दिया। शहरोज वाकई जितना खूबसूरत था इससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। इसने दुआ की दास्तान सुनी तो दिल में इरादा किया कि बस अब दुआ से ही शादी करेगा। शहरोज ने शादी के लिए हाँ कर दी। दुआ और शहरोज की शादी ईदी होम
में हुई और सहरोज बाबा और दुआ को लेकर घर चला गया। दुआ की जिंदगी में खुशियां थी, इसे अम्मा की बहुत याद आती। दुआ के इसरार पर शहरोज इसे इसके घर ले गया, मगर वहां मौजूद नहीं थी। दुआ की भाभी ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने बहुत मारा और कहा कि दुआ कहाँ है, मगर तुम्हारी माँ ने कुछ न बताया, फिर रोज इसे मारते। और फिर एक दिन कुछ लोग तुम्हारे अबू की लाश उठा कर ले आए और बताया कि नशा ज्यादा करने की वजह से इनकी मौत हो गई और वो गली के एक कोने में गिरे पड़े थे। इनकी तदफीन के बाद तुम्हारी माँ बहुत बीमार रहने लगी। इस वक्त वो एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं। दुआ और शहरोज जल्दी से अस्पताल पहुंचे और दुआ की माँ वहाँ एक बेड पर मौजूद थी। बेटी को देखकर ही वो खुल उठी और शहरोज के बारे में पूछा, ये कौन है? दुआ ने जब सब बताया तो खुशी से उठ बैठी। शायद बेटी का गम ही इनकी बीमारी का सबब था। कुछ दिन बाद शहरोज और दुआ इन्हें अपने घर ले आए और अब वो अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती हैं। अब दुआ की जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी। दुआ भी सोचती रहती है कि मेरे साथ मुआवजा हुआ है अल्लाह की तरफ से। अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत करें, बहनों को बोझ मत समझें, माँ बाप को बोझ मत समझें, बहनें बोझ नहीं होती। खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी की बहन तंग आकर यतीम खाने या यतीम होम का रुख कर लेती है तो ये याद रखिएगा, दुआ की तरफ सबके साथ मुआवजा नहीं होगा। शहरोज की तरफ कोई शादी के लिए नहीं आएगा। मुआवजे किस्मत से होते हैं जो दुआ के साथ हुआ था। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।